Hi, good afternoon, friends. Uh, Hello. So, I'm back with another video. In the last two videos, we had discussed related to operations research, two uh, methods. One was least cost method, another was northwest corner method. I hope you enjoyed those videos, those contents. Please let me know in the comment section so that I can make similar videos in future also, which would help you in your preparations, in your studies, and everything. So this video currently is slightly different from the operations domain. It is related to commerce and economics more. So it will be beneficial for people who are studying in their class 11th in CBSE or ICSE, or who are trying to prepare for any examination which involves commerce or economics for them, or any trade related things. So it will be helpful or beneficial for them. So this topic is balance of payment. So you have heard, I think, in the news about balance of payment crisis existing in few countries, which uh, pushes them on the brink of bankruptcy, and then IMF and WB, World Bank, coming to their rescues, giving them loans and all these things. So what BOP, that is balance of payment, I think is, and India also faced similar crisis very close to this. Uh, I'll give you one task. You guys need to comment that when did India face such kind of a situation? Okay. So let's get started with this video. So as I mentioned, so about BOP. So, in India, in India, uh, sorry, in India, uh, we have the RBI, which does publish this thing manually, quarterly or annually, and so I'll just like to mention that we have this being published worldwide also on a global scale. RBI does this for India only. And globally, it is being published by IMF. I'm sure you guys know what IMF is. Or if you want me to discuss about IMF and its roles, its organized wings, and what it does and all these things, then please feel free to drop in the comments. I will make up another video for that. So, what does BOP or balance of payment show? Balance of payment definitely shows, balance of payment shows the transaction of residents and the government of India with other countries. Very simple, to put it very simply. मतलब हमारे देश मतलब ये दिस इज ऑन अ इंटरनेशनल सेटिंग. यू कीप इंडिया इन द फोकल पॉइंट. आप इंडिया को मध्य रख के सोचिए इंडिया के साथ किसके किसके क्या क्या लेन देन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं. वो ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम लोग आगे जाकर कंपोनेंट्स में ब्रेक करके डिस्कस दैट. तो पीओपी वही बताता है ऑन अ क्वार्टरली ईयरली बेसिस कि कितना ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू फ्रैंकली पुट इट. अब इंडिया में कौन कौन आते हैं? गवर्नमेंट आता है, रेसिडेंट्स आते हैं, और भी जो जो आते हैं, सिटीजन्स आते हैं, नॉन सिटीजन्स आते हैं इवन. ठीक है. तो दिस इज योर टास्क. रिसर्च करके आप बताइएगा कि आर द ट्रांजेक्शन्स विच आर डन बाय फॉरेन इंटरनेशनल्स स्टेइंग इन इंडिया आर आल्सो काउंटेड इन पीओपी और नॉट. ये आपका काम है. सो आपको पता है जीडीपी और जीएनपी में क्या सीन है रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ फॉरेन नेशनल्स, कि क्या किसमें कौन सा इंक्लूड होता है. सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट. बट बीओबी में इज इट कंसिडर्ड और नॉट, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा. ठीक. तो बीओपी का दो कंपोनेंट्स है ब्रॉडली. एक है करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट. तो करंट अकाउंट को हम लोग ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं. ठीक है, बीओटी. और कैपिटल अकाउंट है, जैसे आपको पता है. करंट अकाउंट में भी दो कंपोनेंट्स है. एक होता है ट्रेड ऑफ विजिबल्स, एक होता है ट्रेड ऑफ इनविजिबल्स. अब विजिबल्स मतलब क्या? जो टेंजिबल है, जो आपको दिख रहा है, लाइक गुड्स, मर्चेंडाइज, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, स्टील, जो भी है ट्रेड हो रहा है, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो भी चीजों का हो रहा है, दैट कम्स अंडर द ट्रेड ऑफ विजिबल्स. ठीक है. ऑफ गुड्स स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट. अब ट्रेड ऑफ इनविजिबल्स में आते हैं. इनविजिबल्स मतलब क्या? आपको नाम से पता चल रहा है, इंटेंजिबल्स.
जो दिखते नहीं है। अब क्या दिखते नहीं है? गुड्स तो दिखते हैं, तो क्या नहीं दिखते हैं? सर्विसेज नहीं दिखती है। तो इसके तीन कंपोनेंट्स, एक तो सर्विसेज हो गया, दूसरा है ट्रांसफर्स, और तीसरा है इनकम। तो आप इसको एसआईटी करके याद याद रख सकते हैं, मैं एक्रोनिम एसआईटी। ठीक है। तो जैसे कि इफ आई टेल यू, एस आई एंड टी। ठीक है। तो एस से तो सर्विसेज आ गए। ठीक है। अब आई से क्या? आई से इनकम। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आई में आते हैं। प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट। ठीक है। और टी क्या है? ट्रांसफर, पेमेंट्स, रिमिटेंसेस हो सकते हैं, डोनेशन हो सकते हैं, गिफ्ट गिफ्ट हो सकते हैं। अब मैं समझाता हूँ आपको क्या क्या होता है। सर्विसेज तो आपको समझ में आया, जैसे गुड्स है, मर्चेंडाइजेस है, वैसे सर्विसेज है। जैसे कोई आईटी कंपनी है इंडिया में, वो अपना सर्विसेज एक्सपोर्ट करे, जैसे टीसीएस है, टीसीएस अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, बाकी देशों में। और फिर हम लोग वहां से भी सर्विसेज लेते हैं दूसरे कंट्रीज से। तो वो सर्विसेज में आ गया। रेमिटेंसेस मतलब ट्रांसफर्स, मतलब क्या, उसमें रेमिटेंसेस आएंगे। ठीक है। ओ, रेमिटेंस मतलब क्या? अगर आपके कोई फैमिली में कोई बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, सेटल्ड है आपके फैमिली में, एंड ही और शी सेंड्स यू पेमेंट्स, सालाना, महीने भर, क्वार्टरली आपको पेमेंट भेजता है वो, एज अ फैमिली मेंबर लोग भेजते हैं, तो वो रेमिटेंसेस होता है। इंडियन डायस्पोरा का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द फेलो सिटीजन्स इन इंडिया, उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। अभी इंडिया का हाईएस्ट रेमिटेंस आया था लास्ट ईयर, आई थिंक, ऐसा कुछ न्यूज में था तब, एक महीने में, एक क्वार्टर में, दे रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम द इट्स डायस्पोरा। तो ये हो गया ट्रांसफर। ठीक है। अब डोनेशंस गिफ्ट्स तो आपको समझ में आ गया, रेमिटेंसेस जैसे ही होते हैं डोनेशंस गिफ्ट्स। अब रेमिटेंसेस मोस्टली लोग फैमिली को भी भेजते हैं। अब डोनेशंस गिफ्ट्स आप किसी को भी भेज सकते हो, आपका रिश्तेदार के अलावा भी कोई एनजीओ या किसी को भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, डोनेट करना चाहते हो कोई भी अच्छे कॉज के लिए, तो वो उसमें आता है। ठीक है। अब प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब इनकम में आएंगे। ठीक है। आपने किसी भी फॉरेन इसमें निवेश करके रखा हुआ है, शेयर्स है आपके कोई भी फॉरेन कंपनी में, अब वहां से आपके कितने डिविडेंड्स आप कमाते हो वहां से, ठीक है, वो आएगा। फिर आपने कोई लोन लिया है, आपने कोई लोन दिया है, ठीक है, अब उसके इंटरेस्ट, वो लोन नहीं, लोन का प्रिंसिपल और बाकी चीज नहीं, बस इंटरेस्ट, वो आएगा इसमें। लोन सेपरेट है कैपिटल अकाउंट में, लोन का प्रिंसिपल बाकी चीजें वो उसमें आएंगी। इंटरेस्ट पेमेंट आप कितना आ रहा है आपके पास, आप कितना दे रहे हो, वो सब इसमें आएगा इन द करेंट अकाउंट। ठीक है। ये बहुत क्लियर रखना चीजें। और प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल गेन, अप्रिसिएशन, कुछ भी हो रहा है, वो प्रॉफिट, वो भी इसमें आता है। ठीक है। एसआईटी, ये याद रखना। अब कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। ये हमने करंट अकाउंट देख लिया, नाउ विल गो टू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें दो पार्ट्स है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें एफडीआई एफपीआई आता है। एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में मतलब वो आपके कोई विदेशी कंपनी आपकी कंपनी में निवेश कर रहा है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शेयर्स ले रहा है वो आपके कंपनी में, ओनरशिप ले रहा है, विद द इंटेंट ऑफ रनिंग द कंपनी, रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, रनिंग द डे टू डे जॉब्स। मतलब ऐसे ही बस पैसे डाल के वो बस चुप नहीं है कि कब उसके प्रॉफिट आएंगे वो पैसे लेके भाग जाएगा, तो बस शेयर्स खरीदने में वो इंटरेस्ट नहीं है, वो इट इज इन्वेस्टिंग टू हैंडल द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, ओनिंग स्टेक्स इन द ओनरशिप। उसको डिसीजनशिप में स्टेक चाहिए, उसको डिसीजन ले रहा है, उसको डिसीजन लेना है, दैट इज एफडीआई। ठीक है। एफपीआई, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इसको हॉट मनी बोलते हैं। ये लोग बस इन्वेस्ट करते हैं अपने कैपिटल गेन के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आपके शेयर्स, मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी में कोई फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, अभी मान लीजिए ₹1 में वो ट्रेड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसका जैसे वो X+1 या X+2 जिसमें वो रीच करके जैसे ही ये पैसे दे विल विड्रॉ, उसका प्रॉफिट बुक कर लिया उसने, दे हैव गेन्ड देयर कैपिटल एप्रिसिएशन, तो नाउ दे विल एग्जिट। उनको दे डू नॉट इंटेंड टू रन दी कंपनी, उनको कंपनी चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको मैनेजमेंट, डे टू डे ऑपरेशन, ये सब हैंडल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, दे आर जस्ट देयर फॉर देयर ओन प्रॉफिट, फॉर देयर कैपिटल एप्रिसिएशन, और वो सब चीजें चीजों के लिए वो इनके हमारे देश में सेबी ने इसका रूल बनाया है कि 10% से ज्यादा एफपीआई इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भी अपनी। ठीक है। ना कमिंग टू एक्सटर्नल बोरोइंग्स।
अब इसमें भी तीन कंपोनेंट्स हैं। गारंटी नेट्स इंडिया को मिलते हैं WB से, वर्ल्ड बैंक से, मतलब इंडिया को नहीं, कोई भी कंट्री को मिलता है फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशन से। किसी से भी मिल सकता है गारंटी नेट्स। ठीक है, जो जिसके पास है, जिससे देश मांग रहा है सहायता के लिए, वो दे सकता है गारंटी नेट्स। ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, दिस इज फॉर कंपनीज और कॉर्पोरेट्स। वो बाहर से कितना बॉन्ड्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके कर रहे हैं। जैसे मसाला बॉन्ड है। अब आप बताइएगा मसाला बॉन्ड क्या होता है? ओके, गवर्नमेंट सॉवरेन बोरोइंग्स। अब ECB जैसे कंपनी बोरो करती है, अब गवर्नमेंट भी बोरो कर सकता है दूसरे देशों के गवर्नमेंट से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से, कोई भी किसी से बोरो कर सकते हैं। ठीक है। अब ग्रांटी नेड और सॉवरेन बोरोइंग में डिफरेंस होता है। ग्रांटी नेड मतलब आपको वो रिपे नहीं करना है। इन सॉवरेन बोरोइंग्स मतलब आपको वो रिपे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो बोरोइंग वो एज ए लोन ट्रीट होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब आपको ओवरऑल समझ में आएगा मोटा मोटा क्या चीज है ये। अब सोचिए कि आपका करंट अकाउंट और मतलब बैलेंस कैसे हो रहा है। जैसे बैलेंस शीट होता है ना, मतलब बैलेंस होना चाहिए आपका, एसेट और लाइबिलिटीज दोनों साइड, एसेट्स और लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी दोनों बैलेंस होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी दोनों बैलेंस होगा, करंट अकाउंट और कैपिटल। दोनों का सम जीरो ही आएगा। तो कैसे होगा वो? अगर कोई पार्ट नेगेटिव है तो दूसरा पार्ट का पॉजिटिव उसको नलीफाई कर देगा। ठीक है, करना ही पड़ेगा। तो करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में है तो कैपिटल अकाउंट का सरप्लस विल मैनेज द बैलेंस ऑफ पेमेंट हियर। इन दैट केस इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है बहुत दिनों से। इंडिया इज ऑलवेज इन करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इट रिलाइज ऑन इट्स कैपिटल अकाउंट सरप्लस टू नलीफाई दैट थिंग। तब इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखना, इंडिया इज इन सरप्लस इन ट्रेड ऑफ सर्विसेज। ठीक है, रेमिटेंसेस भी उसको अच्छे मिलते हैं, गिफ्ट डोनेशन प्रॉफिट ये सब उसको अच्छे मिलते हैं। तो इसमें इंडिया इज इन सरप्लस। ठीक है, सरप्लस। ठीक है। FDI FPI भी आजकल अच्छा आना, इनफ्लो होना शुरू हुआ है। इसमें भी अच्छे खासी ग्रोथ है, इसी ऑल्सो इन सरप्लस। और ECB तो नॉट वेरी इनकरेजेबल, बट इसमें भी तो इंडिया का क्यों चाहिए इंडिया को कैपिटल से सरप्लस हेल्प? क्योंकि इंडिया रन्स अ ह्यूज करंट अकाउंट डेफिसिट ड्यू टू दिस ट्रेड ऑफ विजिबल्स। इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन एक्सपोर्टिंग। आयात निर्यात का कॉन्सेप्ट है विजिबल्स। विजिबल्स में इंडिया बहुत ज्यादा डेफिसिट इनकर करता है, जिसकी भरपाई करने के लिए बाकी सारी चीजों को लग जुट जाना पड़ता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। अब कुछ डेटा की बात करें अगर, तो अगर आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब अभी इंडिया के पीछे लगे हुए हैं कि हमें टैरिफ वगैरह लगाएंगे, क्योंकि इंडिया USA के साथ ट्रेड सरप्लस में। इंडिया बहुत कम देशों के साथ ट्रेड सरप्लस में है। अब आप ये कमेंट करके मुझे बताइए कौन से देशों के साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस में, अपार्ट फ्रॉम USA। और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ बहुत ज्यादा, इस बार और बढ़ गया है, क्लोज टू $130 बिलियन। लास्ट टाइम इट वाज क्लोज टू 114। इस बार ये वो 130 हो गया। मतलब हम लोग ने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया है, इंपोर्ट करना बढ़ा दिया है। तो जितना करेंगे उतना इट विल नॉट बी गुड फॉर आवर इकोनॉमी। डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इन दोनों की इम्प्लीकेशन समझते हैं। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ये जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही है यहाँ पे भी। इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी में जैसे लगता है वैसे इंटरनेशनल इसमें भी लगता है। ठीक है। जैसे लोन्स लेना, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इज दिस कंपोनेंट हेल्दी? आप अपने विजिबल्स के ट्रेड का डेफिसिट को कम करने के लिए आप ज्यादा एक्सटर्नल बोरोइंग्स ले लीजिए, फिर उसको compensate करने के लिए। इज इट गुड? इट इज गुड if the borrowings are being utilized for developing some capital assets in this country, in the country, or running any welfare program जिससे कोई social outcome दिखे। But अगर it is being solely used for deficit financing, for debt financing, तब it will not be beneficial for the economy. It will lead to a vicious trap. आप लोन लोगे कोई चीज की भरपाई करने के लिए, फिर डेट क्रिएट होगा, आप उसको भरने के लिए फिर से लोन लोगे, तो ये ऐसे घूमता रहेगा। इट विल सर्कुलेट एंड लीड टू अ विशियस डेट ट्रैप। आई आस्क्ड यू क्वेश्चन इन द बिगिनिंग कि कब इंडिया का BOP क्राइसिस चला था, ऑन द ब्रिंक ऑफ दैट। वो था ड्यूरिंग 1999 क्राइसिस, जिसकी वजह से इंडिया हैड टू इंट्रोड्यूस द LPG रिफॉर्म्स। LPG रिफॉर्म्स थे तब अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव जी, एंड इकोनॉमिक एडवाइजर थे तब मिस्टर, अभी रिसेंटली उनकी डिमाइस हुई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उनके नेतृत्व में तब इंडिया एक्सेप्टेड द LPG। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, ये सब इंडिया हैड टू इंट्रोड्यूस।
open its economy to the world. Liberalization reforms. I hope this video helped you to get some conceptual idea about POP, what it is, who publishes this, what are the components, and how it is being calculated, वो चीज़ क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत क्लियर रखना, कॉन्सेप्ट्स, कंपोनेंट्स कौन किसके अंडर में आता है, ठीक है? उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो यू गाइस कमेंट मी, आप मुझे प्रोत्साहन देते रहिए कि कुछ आपके, अगर आपके डिमांड्स हैं स्पेसिफिकली इस पे वीडियो बनाना है, तो मैं अगले दिन करूँगा वो, ठीक है? योर सपोर्ट इज वेरी हेल्पफुल टू माई endeavor, ठीक है गाइस? जय हिंद, मिलते हैं जल्दी। सी यू टिल देन, बाय बाय, टाटा।